Hey there, guys. What's up? This is me, Shivam Sharma. I'm the founder of Being Bullish, and today I'll be taking up a session on, internal operations of stock markets. By qualification, I'm an equity research analyst, and currently I'm pursuing chartered accountancy from the ICAI. Now, why did I mention this? Because there are other institutes who provide this course as well. So it was, really important for me to state this that I am pursuing my chartered accountancy course from the ICAI. Okay, let's get started. The session, the part that I'll be covering today is internal operations of stock markets, wherein you'll be understanding various things such as, how does the last traded price change? What is last traded price? Can you actually manipulate the stock prices? And what is proposal order? What is market order? How do the stock prices reverse? What is euphoria? What is panic? You'll be understanding various such things, and just stay tuned just stay tuned in the session, and let's get started. Just give me a minute. I'll share my screen with you. Here we go. Okay, before we enter into the actual markets, let's get an idea about what exactly is the stock market firstly. Okay, stock market क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि जब भी आप कोई मार्केट में जाते हो, एनी मार्केट फॉर दैट एग्जांपल, लेट्स टेक सब्जी मंडी, वेजिटेबल मार्केट. Whenever you go to the vegetable market, what do you see over there? You see various sellers over there selling various types of vegetables. It could be carrot, it could be karela, it could be Karela meaning bitter gourd. Then you have onions, then you have garlic, then you have tomatoes, a number of things in vegetables. When you enter into vegetable market, you see various sellers over there selling various types of vegetables. And तो अगर हम इसी चीज को स्टॉक मार्केट्स के सिनेरियो में कंपेयर करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि stock market is basically a place where there are various buyers and sellers who come and sell, who buy and sell, the financial instruments such as shares and many other such instruments for that matter. And so let's get started. Basically, stock markets are two types of players. They are the big players as well as the small players. Okay, there are basically two types of players: big players and the small players. Now, what exactly do you mean by big players? As the term suggests, big players are generally known as those individuals or institutions who invest a very huge sum of money in the stock markets. अभी इसको आसान शब्दों में अगर हम बयान करें तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि बड़े लोग, बिग प्लेयर्स का मतलब यही होता है कि बड़े खिलाड़ी, जिनको हम अंग्रेजी में एक और टर्म के साथ क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं, जिसका नाम है द बिग बुल. ओके, ये बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं, शेयर बाजार में या स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा सम इन्वेस्ट करते हैं और इनकी संख्या जो है मार्केट में काफी कम होती है. बड़े खिलाड़ियों की संख्या जो है मार्केट में काफी कम होती है. ये केवल अगर आप देखने जाओ तो 10% के आसपास ही होते हैं. बट इनका जो अमाउंट होता है, इनकी जो रकम होती है जो ये मार्केट में डालते हैं, वो तकरीबन 90% ऑफ टोटल मार्केट शेयर होता है. दे कवर टोटल 90% ऑफ द मार्केट शेयर. And as you can see ahead, that these big players are generally known as QIBs, qualified institutional buyers, or FIIs, or DIS, domestic institutional investors, or the big bulls.
there are relatively less big players in the market. जैसे मैंने कहा था कि बिग प्लेयर्स जो है मार्केट में काफी कम होते हैं, बट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम इज जनरली कॉस्मिक इन नेचर। एज आई सेड कि यू नो ये लोग जनरली इनका जो पॉपुलेशन होता है मार्केट में वो काफी कम होता है। these guys are less in population, but then the amount that these guys invest is quite huge in nature। अगर मेरे को आपको कुछ तरह से समझाना हो तो आई कैन एक्सप्लेन यू इन दिस वे। जस्ट अ मिनट। सो अगर मैं आपको एक पाई चार्ट के थ्रू इस चीज को समझाना चाहूँ कि बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर्स का कंपोजिशन कैसा होता है, तो ओके, लेट अस अज्यूम this for the sake of population। So this pie chart would resemble or denote population, and we'll be drawing another pie chart which would denote the amount invested। Let me change the color for it and change it to blue। Okay, so here is this circle। अभी अगर हम देखने जाएंगे तो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखने जाओ तो मार्केट्स में बिग बुल्स या जो कहते हैं आप लोग जिन्हें आप बिग प्लेयर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो पाई चार्ट में तकरीबन तकरीबन कुछ इतना जगह लेगा, probably 10% of your pie chart। 10%। हाँ जी, तो ये लेगा 10%, 10% for big players, and the remaining 90% be for the small players। ये आएगा यहाँ पे। सो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखने जाओगे तो इट इज 90% स्मॉल प्लेयर्स एंड 10% बिग प्लेयर्स। अभी अगर आप फंड एलोकेशन के इसमें आते हो कि शेयर मार्केट में अगर मान के चलो कि शेयर मार्केट का आज का टोटल वैल्यू जो है वो तकरीबन तकरीबन 100 रुपए है। ओके, लेट्स टेक इट एज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि सपोज मार्केट्स का वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू इज अराउंड 90%, सॉरी 100 रुपीज। तो उसमें से 90 रुपए जो होता है वो बड़े खिलाड़ियों का होता है, एंड जो बाकी बचा कुचा 10 रुपए होता है वो बाकी बचे 90 खिलाड़ियों का होता है जो छोटे खिलाड़ियों के नाम से भी जाने जाते हैं। सो this is the amount अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 10%
बिग बुल्स, यहाँ पे मैं बीबी करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ जाए कि ये क्या है। बीबी, बीबी का मतलब है बिग बुल्स। एक सेकंड, या सो यहाँ पे यहाँ का शेयर अगर हम लिखें तो इट विल बी 10% ऑफ द बिग, 10% ऑफ द अमाउंट वुड बी ऑफ द बिग बुल्स। लेकिन ये 10% जो अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है बिग बुल्स का। तो जैसे कि मैंने आपको वही एग्जांपल में समझाया कि 10% ऑफ द बुल्स own 90% of the funds and 90% of the small players own 10% of the funds. तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा को समाप्त करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दूसरी एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है कि how is the stock price decided. Now let's understand कि just so let's get started. So sorry for the interruption. And okay, let's get started and discuss how is the stock price decided. Let's understand. Supposingly there is a person, say A, and he wants to buy apples from the market. So the but obvious thing is that he would go to the market and buy apples from the seller. Yeah, and so when he visits the market to buy apples, he found a seller selling the apple at 100. Now, as a buyer, A has two options. That is to buy the apple at 100. In case if A buys the apple at 100, then the accepted price of the apple would be 100, which means that the price proposed by the seller is accepted by A. And when this happens, a trade or an exchange for that matter takes place. The price at which it is exchanged is known as the traded price, and the prices that you see in the stock markets is nothing but the last traded price, which means that this is the latest price at which the buyer has acquired the shares from the seller. For example, if the price of Yes Bank as on 1200 hours is 40 rupees, it means that a buyer has recently acquired the shares of Yes Bank at 40 from the seller, which means which means that this is a most competitive transaction. अभी most competitive transaction के बारे में हम आगे आगे जाकर पढ़ेंगे in a segment called as most competitive buyer and most competitive seller. अभी के लिए इसी एक example के साथ let's focus on this example. Let's stay focused. तो अगर इसको हिंदी में समझाना हो तो इसको कैसे समझाया जाए? देखिए, एज अ बायर आप जैसे ही मार्केट में घुसते हैं तो आप काफी सारे सेलर्स देखते हैं मार्केट में जो एक एप्पल को बेच रहे हैं। तो आप एक सेलर के पास जाते हैं और आप वो सेलर को बोलते हैं कि भैया आप ये एप्पल कितने में बेच रहे हो? तो उनका जवाब आता है सामने से कि भैया ये एप्पल 100 रुपए में मैं बेच रहा हूँ। तो आप एज अ बायर के पास दो ऑप्शन है कि आप इसको 100 रुपए में खरीदो या 100 रुपए में ना खरीदो। ठीक है, तो अगर आप इसे 100 रुपए में खरीदते हो तो क्या होगा? आप अगर इसे 100 रुपए में खरीदते हो तो ट्रेड एक यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा एप्पल का। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एप्पल खरीद लिया और वो सेलर ने एप्पल बेच दिया। कितने पे बेचा? 100 रुपए पे बेचा। तो इसको हम कहते हैं ट्रेडेड प्राइस, या ये अगर हिंदी में समझाना हो तो ये ऐसा प्राइस है जिस पर ट्रेड हुआ है। ओके, एंड स्टॉक मार्केट्स के भाषा में अगर हम इसे समझना चाहें, स्टॉक मार्केट्स के सिनेरियो में अगर हम इसे समझना चाहें तो हम इससे
लास्ट ट्रेडेड प्राइस के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो शेयर जो है, वो शेयर का प्राइस जो है वो अभी किसी बायर ने लेटेस्ट खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ या जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, आप जाकर थोड़ा सा बैक जाकर आप इसे सुन सकते हैं। So now coming back to the second part, that is to not buy the apple at 100. So जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास दो सिनेरियो है, आप या तो एप्पल 100 पे खरीद सकते हो या एप्पल आप 100 पर नहीं खरीद सकते हो। So if in case if you're not buying the apple at 100, now we assume that A would not have agreed to buy the apple at 100, then 100 would not have been the accepted price. जाहिर सी बात है कि अगर ए ने एप्पल को नहीं खरीदा है, या मान के चलो आप हो, अगर वो एप्पल आप नहीं खरीदते हो, तो ट्रेड नहीं होगा एंड वो एप्पल का प्राइस भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है, नो दिस हैज अ सिंपल मीनिंग, that for the price of the apple to be 100, both the parties must agree to execute the contract at that price. That is, the buyer must agree to execute the contract at that 100, and seller must agree to sell the apple at 100. Okay. Now let's say that he again visits the market and tells the seller to sell him the apple at 90 instead of 100. So in this case, instead of the seller, the buyer places a proposal, and if the seller accepts it, then the price of the apple would be 90 rupees. So this is how the trade takes place in the stock markets in reality. That is, the shares are bought and sold at a predetermined price, sorry, for that matter, determined price within a specified time frame. एक टाइम फ्रेम के अंदर आप शेयर्स को या तो खरीदते हो या तो आप बेचते हो। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है, दैट इज हाउ इज द स्टॉक प्राइस डिसाइडेड, ये समाप्त होता है। एंड आगे अभी हम बढ़ते हैं तीसरी सॉरी दूसरी तरफ, जिसका नाम है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है कैन वी मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ स्टॉक। अभी आप एज अ इन्वेस्टर या आप एज अ ट्रेडर या एज अ प्रेशर इन द स्टॉक मार्केट्स, आपके मन में ये सवाल काफी बार आया होगा कि क्या हम एक स्टॉक का प्राइस जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या। तो इसका जाहिर सा मतलब जाहिर सा जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी अभी एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी चलो बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। So yeah, the answer to this question would be that it depends on which company's stock are you buying. That is, that the company is that company a small cap company, a mid cap company, or a large cap company? No. Now, for this matter, you would have got the question in your mind, okay, boss, what is a small cap company, what is a mid cap company, and what is a large cap company? Small cap company is a term used to classify companies with a relative small market capitalization. In India, normally a company below market cap of 5,000 crores is classified as a small cap company. Similarly, in case of a mid cap company, the market capitalization of the companies would be more than 5,000 crores but less than 20,000 crores. And similarly, in case of large cap companies, the market capitalization of the companies is generally more than 20,000 crores. अभी for your kind information, इंडिया में इंडिया में बोल रहा हूँ, सॉरी, बीएससी में फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिस्टम फॉलो होता है। अभी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ वो शेयर्स कंसिडर किए जाते हैं जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड होते हैं, ना कि वो शेयर्स जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, ना कि वो शेयर्स जो केएमपीज या दूसरे व्यक्तियों के पास होते हैं। अभी फॉर दैट मैटर वो कोई भी हो सकते हैं, वो केएमपी हो सकते हैं, वो कोई सीईओ हो सकता है, वो कोई डायरेक्टर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है।
बढ़ते हैं, because generally the stocks of a small cap company are traded less on the stock exchange, and the simple reason to it is that trading in such classes of company is generally way riskier than trading in a mid cap company or a large cap company. So the volume of trade in such type of companies is less small cap companies, and hence manipulating the stock price is comparatively easier. In simple words, manipulation of stock prices can be done only with those shares that have a very low trade volume. जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हाँ, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, लेकिन कौन सी कंपनीज के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो? जो कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी लो है, जिसे कि हम कहते हैं लो ट्रेड वॉल्यूम, एंड जो कंपनीज स्मॉल कैप में, मतलब ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम हो, तो आप उन कंपनीज का शेयर जो है काफी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के शेयर प्राइसेस मैनिपुलेट करने हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है एज एन इन्वेस्टर, वो है फंड्स। आपके पास उतने फंड्स हैं क्या? आपके पास उतने फंड्स हैं ही नहीं, तो आप कैसे मैनिपुलेट करोगे स्टॉक प्राइसेस को? So yeah, in case if you want to influence the price of a blue chip company, then you will have to buy shares in cosmic volumes. You need more shares to manipulate the movement of that share price. जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर आपको blue chip companies का share price move करना है, तो you need more number of you need more amount of funds, and उसी के साथ आप मतलब उसका share price move कर पाओगे, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जो है मार्केट डेप्थ फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अभी मार्केट डेप्थ के बारे में अगर आपको समझना है तो आई विल एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट व्हाट इज मार्केट डेप्थ विद एन एग्जांपल। ओके, suppose you go to the market to buy a few apples, and as a buyer your objective would be to buy at a bargain price, and to do so you perform the following activity। अभी आप एज अ बायर क्या करोगे? आप अन्य सेलर्स के पास जाओगे, दैट इज आप काफी सेलर्स जो है मार्केट में आते हैं, आप उनके पास जाओगे और आप उनसे प्राइस के बारे में पूछोगे कि यार भैया ये एप्पल का प्राइस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में कि काफी सारे सेलर्स के कोटेशंस हैं। जैसे सेलर 1 इज सेलिंग द एप्पल एट 100, सेलर 2 इज सेलिंग इट एट 120, एंड ऐसे ही करके आप आगे देखते जाओगे तो सेलर 3 140 पे बेच रहा है, सेलर 4 150 पे बेच रहा है, एंड सेलर 5 160 पे बेच रहा है। प्राइस इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? प्राइस इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि आप उस कमोडिटी का या उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इंक्वायर कर रहे हो। ठीक है, अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो प्राइस इंक्वायरी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग प्राइसेस फ्रॉम द सेलर्स फॉर अ सेम शेयर, और फॉर दैट मैटर इट कुड बी एनीथिंग। ओके, तो अगर आपको और भी आसान शब्दों में मेरे को एक्सप्लेन करना हो मार्केट डेप्थ के बारे में, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी एज अ रैशनल बायर, you will definitely buy the apples at 100. Yes or no? Probably the answer would be yes, in case if you're a rational human being. Similarly, in stock markets, our objective as a buyer would be to find the most competitive seller, and as a seller, our motive would be to find the most competitive buyer. Now, a most competitive seller is the one who sells the stock at the lowest price referred by the buyer before buying the stock. And the most competitive buyer is the one who buys the stock at a relatively higher price, which is generally also referred by the seller before selling the stock. The system of price inquiry is generally automated in nature, and it looks somewhat like this. अभी आप जब ट्रेड करने जाओगे मार्केट में, तो आपके लिए ये ऑटोमेटिकली, आप जो भी ब्रोकर का ऐप यूज कर रहे हो, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली मार्केट डेप्थ आ जाएगा। अभी मार्केट डेप्थ दिखता कैसे है, चलिए देखते हैं। मार्केट डेप्थ कुछ इस प्रकार दिखता है कि आपके लेफ्ट साइड में जो है बाय दिखता है, दैट इज बिड्स, एंड आपके राइट साइड में जो है दिखता है सेल, दैट इज ऑफर्स।
तो जनरली अगर मैं कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ तो मैं मार्केट डेप्थ का राइट साइड रेफर करूंगा, एंड अगर मैं कोई शेयर मान के चलो मेरे को बेचना है तो मैं वो मार्केट डेप्थ का लेफ्ट साइड देखूंगा. Again, let me explain this to you. Now, as a buyer, you will always refer to the right side of the market depth, and as a seller, you will always refer to the left side of the market depth. On the top of both the sides of market depth, you find the most competitive party that is the buyer and seller, and the least competitive party that is again buyer and seller at the bottom of market depth. Sometimes apart from the prices, the quantity of the shares traded also matter. इसका क्या मतलब हुआ कि शेयर के प्राइस के अलावा कभी कभी आप जितना क्वांटिटी बेचते हो वो भी काफी हद तक मैटर करता है. Buying or selling of stocks take place in a chronological order and not as per the desired order. For example, अभी वापस चलिए मार्केट डेप्थ की ओर आते हैं और इसी तरह मैं probably ना आपको ये एग्जांपल समझा पाऊंगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको कई शेयर मान के चलो खरीदना है तो आप क्या करोगे, आप मार्केट डेप्थ का जो है राइट साइड देखोगे, दैट इज द सेल साइड. और वहां पर आप जब देखोगे तो अगर आप मान के चलो 160 के आपको 7 शेयर्स खरीदने हैं तो आप उसके मार्केट डेप्थ के राइट साइड में आओगे. जैसे ही आप मार्केट डेप्थ के राइट साइड में आते हो और आप ये चीज देखते हो कि यार यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे तो केवल 5 शेयर्स हैं 160 के. तो इस केस में क्या होगा कि जो है आपका जो ट्रांजैक्शन है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा. 160 के 5 शेयर्स ले लिए जाएंगे और 170 के 2 शेयर्स ले लिए जाएंगे. ऐसे चलता है ट्रांजैक्शन का प्रोसेस. एंड जैसे कि यहाँ पे समझाया गया है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक टेक्स प्लेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड नॉट एज पर द डिजायर्ड ऑर्डर. जैसे कि मैंने कहा आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा. पहले आप 160 के 5 शेयर्स खरीदोगे, फिर आप 170 के 2 शेयर्स खरीदोगे. वैसे ही आपके 7 शेयर्स खरीद लिए जाएंगे. ऐसा नहीं कि आपने बोला कि यार चलो 160 के 5 शेयर्स खरीद लेते हैं, 180 के 2 शेयर्स खरीद लेते हैं, या तो फिर 170 के 5 शेयर्स खरीद लेते हैं और 180 के 2 शेयर्स और खरीद लेते हैं. दिस वोंट बी पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो चलिए एक और चीज सीखते हैं इसी के साथ साथ, दैट इज मार्केट डेप्थ के प्रकार कितने होते हैं. यू नो there are how many types of market depths? Basically, there are two types of market depths, that is level 2 market depth and level 3 market depth. अभी लेवल 2 मार्केट डेप्थ जो है वो टॉप 5 कॉम्पिटिटिव बायर्स एंड सेलर्स का डेटा देगा, एंड लेवल 3 मार्केट डेप्थ जो है वो टॉप 20 कॉम्पिटिटिव बायर्स एंड सेलर्स का डेटा देगा. इसका अंग्रेजी में क्या मतलब हुआ कि लेवल 2 मार्केट डेप्थ कंसिस्ट्स ऑफ टॉप 5 कॉम्पिटिटिव बायर्स एंड सेलर्स and level 3 market depth consists of top 20 competitive buyers and sellers. Now, as you can see, there is no such major difference between level 2 and level 3 market depth, which is quite an obvious thing that you can see because level 2 और level 3 market depth में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है except for the number of buyers and sellers जो कि यहाँ पर दिखते हैं आपको market depth में. Which level अभी एक और क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में. This is the most common question that everyone gets, is that which type of market depth do we refer. Now again, the level of market depth is to be chosen, level of market depth to be chosen depends on the quantity of shares that you're planning to trade. अगर आप जो है जनरली कहते हैं ना, आप अगर कम शेयर्स बाय और सेल करना चाहते हो तो probably level 2 market depth is more than enough. लेकिन अगर आप जो है ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय और सेल करना चाहते हो तो आप probably level 3 market depth देखोगे. And most of the brokers in India generally offer level 2 market data, level 2 data, and level 3 data is quite famous among the big players of QIBs. Generally जो है इंडिया में level 2 market depth डेटा ही प्रोवाइड किया जाता है. लेकिन अगर आप एक QIB हो
या तो आप एक बड़े खिलाड़ी हो, आप बिग बुल हो, तो आप लेवल 3 मार्केट डेप्थ रेफर कर सकते हो। इसी के साथ हमारा मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर प्रपोजल ऑर्डर वर्सेस मार्केट ऑर्डर। अभी प्रपोजल ऑर्डर वर्सेस मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? चलिए हम प्रपोजल ऑर्डर के साथ पहले शुरुआत करते हैं। Basically, a proposal order can either be a buying proposal order or a selling proposal order. Now, in either of the cases, you do not trade at the current market price, but instead you set a limit price for that trade, that is to either buy or to sell. इसका क्या मतलब हुआ कि बॉस, चलिए मान के चलते हैं आप शेयर मार्केट में सुबह मतलब मान के चलें कि आप सुबह उठते हैं, आप अपने सारे काम करते हैं, आप ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने आकर 9:30 बजे के आसपास बैठते हैं। And now there is a company, say Interglobe Aviation. Now, for your kind information, Interglobe Aviation का marketing name is Indigo. Indigo आप सब लोग जानते हो कि Indigo is a aviation company, domestic airlines company है। तो अभी इंडिगो एविएशन का सॉरी इंटरग्लोब एविएशन का शेयर प्राइस ट्रैक करते हो, आपको वो शेयर खरीदना है। तो इस केस में आप जैसे ही उसका ट्रैकिंग करना चालू करते हो, आपको लगता है कि नहीं, ओके, नो, सॉरी फॉर दैट, लेट अस अज्यूम कि आप ये शेयर को खरीदना चाहते हो। पहले मैं आपको ये कह दूं कि आप ये शेयर खरीदना चाहते हो, तो क्या करोगे आप? ऑब्वियसली चीज है, मार्केट डेप्थ के राइट साइड में जाओगे, देखोगे कितने सेलर्स हैं वगैरह वगैरह, एंड आपके रिसर्च के बाद आप एक कंक्लूजन पे आते हो कि इंडिगो का शेयर जो है वो कहते हैं ना, काफी ओवर प्राइस है। ओके, मतलब अगर मान के चलो इंडिगो का शेयर 100 है, तो आपके हिसाब से आपका ये कहना है कि इंडिगो का शेयर जो है वो 100 नहीं, वो 90 के आसपास होना चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप एक प्रपोजल ऑर्डर जो है डाल के रख देते हो, एंड प्रपोजल ऑर्डर में आप ये डालते हो कि आपको ये शेयर के इतने क्वांटिटी इतने भाव पे खरीदने हैं, एंड सो योर प्रपोजल ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड, नॉट योर ट्रांजैक्शन। एक काफी थिन लाइन का डिफरेंस होता है बिटवीन प्रपोजल ऑर्डर गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड एक्चुअल ट्रांजैक्शन गेटिंग एग्जीक्यूटेड। अभी प्रपोजल ऑर्डर एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि आपका जो है एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब शेयर का प्राइस 100 से 90 की तरफ आता है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। you know uh, proposal order is generally used by a trader when he or she is not satisfied with the current market price। as I said, अगर आप एज अ बायर या सेलर आप खुश नहीं हो शेयर के प्राइस से, तभी आप प्रपोजल ऑर्डर यूज करोगे। now suppose you want to buy 100 shares of TCS and the current market price of that share is say 100 rupees, but for some reasons you believe that the share prices are overrated, and then in that case what you do is that you place an order to buy 100 shares at 98 and wait for the order to get executed. Once the order gets executed, then we can term it as a buying proposal order transaction. Mind you, that this order also comes with an expiry of 1 day, which means that if the price of the share do not fall below 100 on that day when you had placed the order, then in that case, the at the end of the day, this offer would expire and another fresh order would have to be placed by you on the next day. Similar thing goes with the selling proposal order. अभी अगर आप जो है बाइंग प्रपोजल ऑर्डर ट्रांजैक्शन समझ चुके हो, तो सेलिंग प्रपोजल ऑर्डर समझना आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। फिर भी मैं आपको खाली पढ़कर सुना देता हूँ कि बॉस, similar thing goes with selling proposal order. Now suppose the current price of TCS is say 95, the current price of TCS is what, 95, then you as a rational trader would definitely not sell the shares at 95. Instead you place an order to sell 50 shares at 105 and then wait for the order to get executed. Once this order gets executed, we can term this as selling proposal order transaction. Now, let's understand what exactly a market order transaction is.
So a market order transaction basically involves buying and selling of shares at current market price, and generally when a trader enters such type of transaction it is clear that he or she is satisfied with the valuation of that share price. तो हम लोग प्रपोजल ऑर्डर के खत्म होते ही मार्केट ऑर्डर की तरफ भी बढ़ चुके हैं। एंड मैंने आपको इसका अंग्रेजी में सरल अर्थ बता दिया है। इसका भी अंग्रेजी में सरल अर्थ क्या होता है कि आप जो एज ए इन्वेस्टर हो, कोई भी शेयर को करंट मार्केट प्राइस जो है उसी के साथ आप बाय और सेल कर देते हो। आप जो है वो शेयर प्राइस के साथ खुश हो कि हाँ ये जो भी प्राइस है, जो भी वैल्यूएशन है, ये एकदम परफेक्ट है एंड इसमें कोई भी झोल झपाटा जो है वो नहीं है। मतलब झोल झपाटे का मेरा कहने का मतलब था कि इसका जो वैल्यूएशन है वो एकदम परफेक्ट है। So the major difference between the two orders in this case is that in the case of proposal order, you set a specific price target at which you want to buy or sell, whereas in market order you cannot do such thing. और करना भी क्यों है? मार्केट ऑर्डर में आप खुश हो शेयर प्राइस के साथ तो प्रॉब्ली आपको शेयर प्राइस को ऐसे ही एग्जीक्यूट कर लो। आपको क्यों एक ऑर्डर सेट करना है, ये आपको क्यों एक प्राइस लिमिट सेट करना है ना? तो चलिए हम सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज हाउ डू द प्राइसेस गो अप और कम डाउन। अभी मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो आपको समझ में आ चुका है। मैकेनिकल इफेक्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन पहले हम समझते हैं कि हाउ डू द प्राइसेस गो अप और कम डाउन। इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक जो है वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड दूसरा जो है वो है मैकेनिकल एस्पेक्ट। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। Now, as a buyer of apples, whenever you enter the market, you discover various prices of apples and finally come to a conclusion that apples should be bought from the seller who sells it at the least price. For example, after discovering the entire market, you come to a conclusion that the least traded price of apple is 100, and you, as a buyer, would definitely buy the apple at that given price because it is the least। अभी एज अ जनरल बायर आप वही चीज खरीद वो मतलब अगर जैसे मान के चले आप एप्पल है, आप सबसे सस्ता एप्पल ही खरीदोगे ना, आप सबसे महंगा एप्पल तो खरीदने से रहे। तो यू नो आपने चलो मान के चले कि आपने एप्पल खरीद लिया है, तो आफ्टर अ वाइल सपोज यू अगेन विजिट द मार्केट to buy the apples and you get to know that the prices of apple which earlier used to cost 100 now cost rupees 120 because of a rumor that in the upcoming time there will be a shortage in the supply of apples, and therefore the sellers have increased the prices of apple. Now again, as a buyer of apple you have two options, that is to buy the apple at 120 and to not buy the apple at 120. In case if you buy the prices, in case if you buy the apples at 120, then in that case the last traded price of apple increases from 100 to 120. Now, in case if you do not buy the apples at say 120, then the LTP of the apple would remain at 100 itself. वो 100 से 120 नहीं बढ़ेगा। Prices of apple will go higher only and only if you as a buyer agree to pay higher, and on the other hand, prices of apple will fall only if you as a seller agree to sell at low. If you carefully observe, for the LTP to increase, it is not important for the seller to sell at high, but rather it is important for the buyer to buy at a higher price. And for the LTP to decrease, it is not important for the buyer to buy at low price, but yeah, it definitely is important for the seller to sell at low price. Now, as a buyer of Apple, when you will agree to buy the Apple at say at 120, when you are extremely sorry for that. Now, as a buyer of Apple, when will you agree to buy the Apple at 120? Give me some, throw some good examples to me. Okay. When you are certain that the prices of Apple won't fall below 120, similarly, when will you as a seller agree to sell at low? Obviously, चीज़ है, when will you sell at low? When you are certain that down the line in a couple of weeks, the price of Apple would fall below the current price. Yes or no? I know the obvious answer is yes. So,
वापस से मैं बायर का लाइन कहना चाहता हूँ. Now as a buyer of Apple, when you will agree to buy the Apple at 120, when will you agree to buy the Apple at 120? Obviously, when you are certain that the price of Apple won't fall below 120. आपको पता है कि बॉस Apple के प्राइसेस 120 के below fall ही नहीं होंगे, तभी जाके आप इसको खरीद लोगे. So, for the LTP to increase, it is important for the buyer to be bullish, that is optimistic, and for the LTP to decrease, it is important for the seller to be bearish, that is pessimistic. चलिए हम बढ़ते हैं मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू. मैकेनिकल इफेक्ट आई गेस मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. अब मैकेनिकल एस्पेक्ट जो है शेयर प्राइस का वो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे यदि आपने पहले का वीडियो काफ़ी अच्छे से देखा होगा तो. फिर भी मैं आपके लिए खाली ये लास्ट का पार्ट जो है वो पढ़ना चाहता हूँ. So when you enter the market to buy any share, you will refer to the right side of the market depth and purchase the shares from the most competitive seller, and then moving slowly towards the least competitive seller in chronological order. And similarly, when you enter the markets to sell the shares, you would refer to the left side of the market depth and sell the shares to the most competitive buyer, and then move gradually towards the least competitive buyer. Example, speaking mechanically, for the prices to increase from 160 to 180, a buyer will have to buy all the shares as given in the market depth at given prices on the right side, and for the prices to decrease from 150 to 142, the seller will have to sell all the shares at a specified price as given in the market depth. तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आपको सब कुछ समझा होगा अभी तक मैंने जो भी कुछ समझाया है. And let's proceed for the last concept of this video, that is how do the stock prices reverse. अभी स्टॉक प्राइसेस कैसे रिवर्स होते हैं, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. मान के चलिए आप एक बिग बुल हुई, ठीक है, आपके पास काफी ज्यादा फंड है, ठीक है. तो आप क्या करते हो, आप एज अ इन्वेस्टर जो है मार्केट में वो सारा पैसा डाल देते हो. मतलब मान के चलिए आपके पास मोटा मोटी 100 करोड़ रुपए है, तो आप क्या करोगे कि आप जो है वो 100 करोड़ रुपए डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, सपोजिंगली से इंटरग्लोब के शेयर में, ठीक है. तो मान के चलिए आपने जैसे ही इंटरग्लोब के शेयर्स में पैसा पंपिंग किया, वो शेयर का प्राइस 100 रुपए से मान के चलिए 110 की तरफ चला गया. तो आपने क्या किया, और पैसा पंपिंग किया, आपने और 100 करोड़ रुपए डाला, तो वो पैसा जो है, तो जो शेयर प्राइस है वो 110 से 120 हो गया. एंड ऐसे ही अगर आप पैसा पंपिंग करते रहो तो वो शेयर का प्राइस जो है ऊपर जाएगा. अभी इसका क्या मतलब है, या इससे क्या होगा कि जो है दूसरे सेलर्स जो है मार्केट में, दूसरे जो बायर्स है मार्केट में, वो क्या देखेंगे कि यार दूसरे जो इन्वेस्टर्स है वो मार्केट में क्या देखेंगे कि यार ये जो इसके शेयर प्राइसेस तो काफी बढ़ रहे हैं, चलो हम भी खरीद लेते हैं. तो वो क्या होगा कि और दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इसको खरीदना चालू करेंगे, एंड तब के बाद से ना धीरे धीरे उसके शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ना चालू होगा. चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट क्लियर अप दिस. तो चलिए अभी एज एन इन्वेस्टर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप पंपिंग करना चालू करते हो तो शेयर का प्राइस जो है वो धीरे 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 करके अप जाएगा. एक सेकंड. चलिए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एज अ बायर मतलब एज एन इन्वेस्टर जब आप पैसा पंपिंग करते हो तो जो शेयर का प्राइस है वो धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा. एक सेकंड.
तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे आप पैसा पंप इन करोगे वो शेयर का प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे 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 धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसी चीज को रिटेल इन्वेस्टर्स जब देखने बैठते हैं तो उनको लगता है कि ये स्टॉक के प्राइसेस जो है वो लेजिटली ऊपर जा रहे हैं, तो वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं एंड धीरे धीरे करके ये स्टॉक का प्राइस जो है वो और ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं यूफोरिया। अभी यूफोरिया का क्या मतलब होता है? यूफोरिया का मतलब ये होता है कि ये ऐसा फेज है जहाँ पे मार्केट में सिर्फ बायर्स हैं वो शेयर के एंड देयर आर नो सेलर्स, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं अपर सर्किट। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू आवर पीडीएफ एंड चलिए समझते हैं कि यू नो व्हाट इज यूफोरिया। अभी यूफोरिया एक सिचुएशन है where everyone wants to buy the share because it has been constantly increasing since a few days, few weeks or a few months, which eventually leads to a situation called as upper circuit. तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि यूफोरिया एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर सब लोग चाहते हैं, सब लोग ये एक शेयर को खरीदना चाहते हैं एंड जैसे ही ये सिचुएशन आती है ये एक और सिचुएशन की तरफ हमको खींच कर ले जाती है जिसका नाम है अपर सर्किट। अपर सर्किट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर उस शेयर के या उस स्टॉक के केवल बायर्स हैं एंड उस स्टॉक के जो है सेलर्स नहीं हैं। Okay, due to euphoria, the stock prices get stagnated at a point of time, and the big bulls then start selling the shares in a huge quantity. इसका क्या मतलब हुआ कि जो है जैसे ही अपर सर्किट का सिचुएशन आता है, बड़े बुल्स या बिग बुल्स क्या करते हैं, बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं, उस स्टॉक को बेचना चालू कर देते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऊपर जाएगा नहीं तो पैसा रखना क्यों है, तो वो सेलिंग करना चालू कर देते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि जो है मार्केट उसका जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो धीरे 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 करके नीचे आना चालू हो जाता है, जो इवेंचुअली एक सिचुएशन की तरफ आपको खींच के ले जाता है जिसका नाम है पैनिक। अभी पैनिक इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द ट्रेडर्स वांट टू सेल अ स्टॉक or a share because its prices have been constantly falling to a greater extent, which leads to a situation called as a lower circuit, where there are only sellers for that stock or share and there are no buyers for it in the market। जैसा कि मैंने आपको समझाया, वो इतना सेलिंग चालू हो जाता है उस शेयर्स का कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन आ जाता है कि यार इसके प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो सब लोग इसके शेयर प्राइस को सब लोग इसके शेयर्स को बेचना चालू कर देते हैं, वो कंपनी के शेयर्स को बेचना चालू कर देते हैं। Once the lowest point is met, the big players again enter the markets and again start buying the shares. तो अगर आपको एक जो है सिचुएशन अगर आपको समझी होगी तो इसमें क्या होगा, आपके शेयर के प्राइसेस धीरे धीरे करके डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे एंड जैसे ही वो प्राइसेस डाउन होते जाएंगे, सपोजिंगली से अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए से 1 रुपया हो गया होगा तो उधर से बिग बुल्स अगेन एक्सेलरेट करते हैं एंड जो है बाइंग करना चालू करते हैं। So this is a cycle that basically keeps going on and on every now and then. This is just like a cycle, you know कभी से ऐसे ही फिर शेयर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ का जो है सेशन समाप्त करना चाहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे 8452988916 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कभी भी। एंड या तो आप अगर चाहें तो beingbulish2103@gmail.com पे अपने डाउट्स हमें भेज दें, या तो फिर आप जो है हमारे इंस्टा आईडी दैट इज
द बुलिश गेम्स पे भी हमें क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है मेरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट्स छोड़ दें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। इनकेस अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लोगों में एक फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा करें, एक जो है मार्केट्स की लिटरेसी पैदा करें लोगों में, लोगों को भी पता रहे कि मार्केट्स में एक्चुअली चलता क्या है। क्योंकि मार्केट्स में अगर आप देखने जाओगे आज के डेट में, लेट्स बी प्रैक्टिकल, काफ़ी न्यूज़ आती है मार्केट में कि आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा, आपका पैसा 3 दिन में डबल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज एब्सोल्युटली फ्रॉड। इन केस अगर आप ऐसा कुछ देखें तो इमीडिएटली वो स्क्रीन को बंद कर दें। उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जिसने भी आपके सामने ये नोटिस लाया है, जिसने भी आपको मैसेज किया है, वो एक ही मोटिव से आया है, वो आपका पैसा हड़पना चाहता है। सिंपल सी जो बात है। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम अपना मेरा सेशन जो है समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ओवर हियर विद अस, फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अपने लाइक्स के थ्रू काफ़ी ऐसे प्यार भेजते रहें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।